In the previous lecture, we have discussed about matter and classification of matter. Today we are going to discuss fundamental properties of matter. That is fundamental properties of ਮੈਟਰ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼? ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਮੈਟਰ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 7 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਦ ਓਨ properties of matter called fundamental properties। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਟੋਟਲ 7 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਫਰਸਟ ਹੈ temperature, second mass, third length, fourth time, next current, next luminous intensity, and last is amount of substance। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੈਲਵਿਨ। ਮਾਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ kg। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? kg ਔਰ ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? kg। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਲੈਂਥ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਮੀਟਰ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਸੈਕਿੰਡ। ਕਰੰਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਪੀਅਰ। ਲਿਊਮੀਨਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਕੈਂਡੇਲਾ। ਐਂਡ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਲ। ਦੇਖੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਮਾਸ, ਲੈਂਥ, ਟਾਈਮ, ਕਰੰਟ, ਲਿਊਮੀਨਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਂਡ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸਬਸਟੈਂਸ। ਯੂਨਿਟਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਕੈਲਵਿਨ, ਮਾਸ ਦੇ kg, ਲੈਂਥ ਦੇ ਮੀਟਰ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ, ਕਰੰਟ ਦੇ ਐਂਪੀਅਰ, ਲਿਊਮੀਨਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੇਲਾ ਐਂਡ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੈਟ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਡਰਾਈਵਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼? ਵਿਚ ਆਰ ਡਰਾਈਵਡ ਫਰੋਮ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਮੈਟਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ? ਡਰਾਈਵਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਮੀਨਸ derived from fundamental properties। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ? ਡਰਾਈਵਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ। ਵੋਲੀਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਲੈਂਥ ਕਿਊਬ ਮੀਨਸ ਲੈਂਥ ਇੰਟੂ ਡੈਪਥ ਇੰਟੂ ਹਾਈਟ। ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਲੈਂਥ ਕਿਊਬ। ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? m ਕਿਊਬ। ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡੈਂਸਿਟੀ ਮਾਸ ਅਪੋਨ ਵੋਲੀਅਮ। ਮਾਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟ kg, ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? kg ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਔਰ kg। ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਫॉर एग्जांपल ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫੋਰਸ m into a।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟ kg, एक्सीलरेशन के यूनिट्स की होंगे अपने को मीटर ms2, एक ही बन जाएंगे अपने को kg ms-2 जी ए वाली क्वांटिटी है इनू आप की कहने 1 न्यूटन। नैक्सट है अपने को वर्क का फॉर्मूला F फोर्स एंड इनटू डी दैट इज डिस्प्लेसमेंट। हम देखो फोर्स के यूनिट अपने को की बन रहे हैं 1 न्यूटन दैट इज न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट के यूनिट अपने को की होंगे ने डी, तो ये यूनिट्स की बन जाएंगे अपने को एन एम। ठीक है, हम देखो आ वाली प्रॉपर्टीज जिहड़ियां काहदे तो डराइव हुई ने अपने को फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, तो इन्हां प्रॉपर्टीज नूं आपां की कहने हैं ड्राइव्ड प्रॉपर्टीज। क्लीयर है, चलो उस तो बाद नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नोटेशन। हम देखो फॉर एग्जांपल मान लो अपने को कोई वैल्यू है 9000, कुछ वैल्यू इदां दी होंदियां ने जिहड़ियां बहुत ज़्यादा वड्डियां होंदियां ने जां बहुत ज़्यादा की होंदियां ने छोटियां, तो वो वैल्यूज़ नूं याद रखना पॉसिबल नहीं है, इस करके साइंटिस्ट ने एक नोटेशन तैयार किया दैट इज वे टू एक्सप्रैस द नंबर विच इज़ वेरी स्मॉल और विच इज़ वेरी लार्ज। हम देखो की हुंदा अपने को साइंटिफिक नोटेशन वे to express the number which is very small or very big। हम इधे रूल्स ने इंपॉर्टेंट ने देखो फर्स्ट रूल if we shift towards the right, if we shift decimal towards the right we subtract the power। देखो फर्स्ट रूल है if we shift decimal towards the right we subtract the power। देखो फॉर एग्जांपल मान लो अपने को 0.00005, अगर इनू आप नोटेशन की फॉर्म च लिखांगे देखो अपने को पॉइंट कितने है आ वाला पॉइंट है। ठीक है, इन कितने लेके जाना आप पॉइंट ए पे 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स आप राइट हैंड साइड लेके जाना तो की बन जूगा अपने को 5.0 इंटू देखो कितने डिजिट उधर लेके जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 लेके जा रहे हैं तो अपने को 10 पावर जो आप राइट हैंड साइड लेके जानी है तो पावर की करनी है आप सबट्रैक्ट दैट इज -6। क्लियर है, देखो किन्ने डेसिमल उधर गए हैं 1 2 3 4 5 6 तो कितना 5.0 इंटू 10 रेज टू पावर -6। सेकेंड रूल if we shift decimal towards the left we add the powers। अगर आप राइट हैंड साइड जा रहे थे तो पावर में की कर रहे थे सबट्रैक्ट, अगर आप लैफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो की करेंगे पावर में ऐड। फॉर एग्जांपल 5.00000 किलोमीटर। ठीक है, अगर इनू नोटेशन फॉर्म च लिखना हो तो देखो किन्ने पॉइंट्स ने आप पॉइंट कितने लगाने इतने 1 2 3 4 5 6 डेसिमल आप लैफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं तो की बन जाएगा अपने को 5.0 इंटू 10 रेज टू पावर कितने पावर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 10 रेज टू पावर 6। ठीक है, क्लियर है। देखो फर्स्ट रूल अगर आप डेसिमल राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो पावर्स की होंगी सबट्रैक्ट, अगर लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो पावर्स की होंगी अपने को ऐड।
क्लियर है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल 942.65 इंटू 10⁻⁵ उन्हें नोटेशन फॉर्म च लिखना तो अपन पॉइंट उरे लेके आना है, पॉइंट उरे लेके आना तो आप पॉइंट 2 डेसिमल किधर लेके जा रहे हैं, लैफ्ट हैंड साइड। जो लैफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो पावर्स की होंगी अपने को ऐड की बन जाएगा अपने को 9 की बन जाएगा अपने को 9.42 इंटू 10⁵ पहला की दो पावर्स की होंगी अपने को ऐड की होंगे 7। क्लियर है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज significant figures। ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ significant figures? It means meaningful figures which is used in calculation। ਉਹ ਵਾਲੇ ਫਿਗਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ significant figures। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵੀ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰੂਲ ਫॉर significant figure। फर्स्ट रूल, all known zeros are significant। जिन्ने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे की होंगे अपने को significant figures। मीन उन्होंने आप काउंट करांगे। फॉर एग्जांपल 3.475 देखो सारे किने अपने को नॉन जीरोस था। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ टोटल significant figures किने होंगे अपने को 4 significant figures। सेकंड रूल, all zeros between non-zeros are all zeros between non-zeros की होंगे अपने को significant figures। फॉर एग्जांपल 2.007 देखो all zeros between non-zeros 2 7 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ zeros ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ significant। ਤਾਂ 2.007 has कितने significant figure होंगे, 4 significant figure। थर्ड पॉइंट, all zeros before non-zero are नॉन सिग्निफिकेंट। जिन्ने भी जीरो बिफोर नॉन जीरोस होंगे वो सारे की होंगे अपने को नॉन सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 0.007 ठीक है। हम देखो आर जीरोस बिफोर नॉन जीरोस, नॉन जीरो तो पहला ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ जीरोस ने सारियां कि अपने को नॉन सिग्निफिकेंट। तो ये अपने को टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे 1 सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है दैट इज जीरो आफ्टर नॉन जीरोस, जीरोस आफ्टर नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। जीरो आफ्टर नॉन जीरो फॉर एग्जांपल मान लो अपने को 4.300 ठीक है। जीरोस आफ्टर नॉन जीरो एक ही ने अपने को सिग्निफिकेंट है कितने होंगे 4 significant figures। and fifth important point that is powers are नॉन सिग्निफिकेंट। जिन्नियां भी पावर्स होंगी वो सारियां की होंगी अपने को नॉन सिग्निफिकेंट पावर, नॉन सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 2.3 इंटू 10⁻⁵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਵਰ ਨੇ नॉन सिग्निफिकेंट ने तो इतने टोटल अपने को सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है। चलो नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट rules for subtraction or
एडिशन सिग्निफिकेंट फिगर्स। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਸੀਡਰ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਲੈਸ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਆਫਟਰ ਡੈਸੀਮਲ। ਫॉर एग्जांपल देखो फर्स्ट पॉइंट है अपने को जिदा आप ऐड कर रहे हैं 2 3.2 4.65 3.267। अगर आप इनू ऐड करांगे तो अपने को कितना आ जाऊगा 1 3। देखो ऐड करके कितना आ गया अपने को इन आ गया। तो इतने सिग्निफिकेंट फिगर किदा कैलकुलेट करने ने वो वाला वैल्यू जिदे कोल लैस नंबर होंगे आफ्टर द डेसीमल। आफ्टर द डेसीमल ये कितने ने 2 ये सॉरी आफ्टर द डेसीमल ये 1 ये 2 ये कितने ने 3। तो आप कैलकुलेट करांगे 1। देखो ये टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने ने अपने को डेसीमल तो बाद 1। ठीक है डेसीमल तो बाद कितने ने 1। तो अपने को टोटल सिग्निफिकेंट फिगर ये कितने ने 3। इतने कितने कैलकुलेट करेंगे 1 2 3। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को 31.1। ठीक है क्लीयर है। देखो जिहदे कोल सब तो घट वैल्यू होगी आफ्टर डेसीमल उहदे कोल जिन्ने अपने को सिग्निफिकेंट फिगर्स ने आप इतने उन्ने ही काउंट करांगे। क्लीयर है। उस तो बाद सैकेंड पॉइंट सेकेंड फॉर एग्जांपल देखो 4 6.04 2.364 3.7721। अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो अपने को कितना आ जाऊगा 1 6 7 1 5 सॉरी 2 5। हम देखो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ये 3 ये कितने ने अपने को 4। तो काउंट केड़ा करेंगे आप आ वाला काउंट करेंगे कितने ने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। तो आप कितने काउंट करने ने 1 2 3 4। तो वैल्यू की आ जाएगी आपको 52.17। ठीक है हम ये एक रूल होर फॉलो करना है। अगर अपने को वैल्यू आ जाती है सॉरी इतने कैलकुलेट करके कितना आएगा अपने को। हाँ जी देखो 5217। हम देखो इतने अपने को जो लास्ट वैल्यू है अगर अपने को 5 तो अबव आ रही है वैल्यू तो उन्होंने की करते हैं आप राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है हम इतने अपने को वैल्यू 5 तो ज़्यादा आ रही है तो इन्हों की करेंगे आप राउंड ऑफ करके कितना आ जाऊगा अपने को 52.18। देखो इतने वैल्यू कितनी आ रही है अपने को 5 तो ज़्यादा आ रही है वैल्यू। ठीक है तो इन्हों राउंड ऑफ करके कितना आ जाऊगा अपने को 52.17 की जगह तो कितना आ जाऊगा 18। ठीक है इन केस इफ 5 अगर आपकी वैल्यू 5 होंगी इन केस अगर वैल्यू 5 होंगी अगर लैस है 5 तो फिर तो सेम ही रहेगा। अगर ज़्यादा है तो उन्होंने राउंड ऑफ कर देंगे आप। अगर 5 वैल्यू होगी तो यूज करना तुम इफ ओड। अगर ओड वैल्यू है तो उन्होंने अपग्रेड कर देने। इफ ईवन तो वो की रहेगी सेम। हम देखो इतने 6। ठीक है हम इतने अपने को कितना सीगा 1761। ठीक है देखो अगर इन केस अपने को वैल्यू कितनी आ रही है 5। ठीक है मान लो उरे अपने को 5 आ रही है वैल्यू तो उस तो फर्स्ट लैटर है जोड़ा अगर अपने को ओड है तो उन्होंने आप कर देंगे अपग्रेड कर देंगे। अगर ईवन है तो वो की रहूगा अपने को सेम रहूगा। हम इतने वैल्यू अपने को कितनी है 6 है तो ऑब्वियसली की होनी है अपने को अपग्रेड ही होनी है कितनी बन जाएगी 52.18। क्लियर है। ओके उस बाद नेक्स्ट है रूल्स फॉर नेक्स्ट रूल है अपने को रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड
रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन रूल सेम ही फॉलो होएगा ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਆਫਟਰ ਡੈਸੀਮਲ ਉਨੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫॉर एग्जांपल देखो अपने को 2.6 अगर इन्हों आप मल्टीप्लाई करिए 2.4 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4071 258 कैलकुलेट करके कितना आ गया 102.24 ठीक है ਹੁਣ देखो ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ 2 ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਫਿਗਰ ਨੇ 3 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 that is 10 ठीक है एक और एग्जांपल देखो 3.61 1.2 अगर इनू आप मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाऊगा 2 ਹੁਣ देखो ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 3 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ 2 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4.3 that means has two significant figures